یہ کہانی ہے فراز کی، ایک یتیم لڑکے کی جو بغداد میں منی میں مزدوری کرتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ جوان تھا۔ اب وہ یتیم تھا۔ وہ منی کے کنارے بیٹھ کر جہازوں سے بھاری سامان اتارتا تھا۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ منی کے کنارے سوتا تھا، لیکن ایک دن ایک امیر لڑکی اسے بھکاری سمجھ کر اسے بھیک دیتی ہے اور فراز اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن بازار کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکی کا فراز سے کوئی رشتہ ہے۔ وہ تاجر لڑکی کے والد کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے اس یتیم لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور فراز کو اغوا کر کے اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ کیا کوئی خیراتی ادارہ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دے گا اور فراز کا کیا بنے گا؟ یہ جاننے کے لیے یہ دلچسپ کہانی ضرور دیکھیں۔ یہ صدیوں پرانا ہے جب بغداد کا شمار دنیا کے عظیم اور خوشحال شہروں میں ہوتا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد اس شہر کی بندرگاہ دن رات سرگرمیوں سے بھری رہتی تھی۔ چین، ہندوستان اور مصر جیسے دور دراز ممالک سے بڑے بڑے بحری جہاز آتے، جو قیمتی ریشم، مصالوں اور دیگر تجارتی سامان سے لدے ہوتے۔ بندرگاہ کی ہوا میں ہمیشہ سمندری نمک اور قیمتی عطر کی خوشبو آتی تھی۔ اس عظیم بندرگاہ کی ہلچل میں ایک 25 سالہ نوجوان نے دن رات محنت کی۔ محنت سے اس کا جسم مضبوط ہو گیا تھا اور دھوپ کی شدت نے اس کی رنگت مضبوط کر دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ چمک اور سنجیدگی تھی جو عام مزدوروں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جس نے بھی اسے پہلی بار دیکھا وہ سمجھے گا کہ وہ کسی شریف گھرانے کی چمکیلی آنکھ لگ رہی تھی، جن کی آنکھوں سے شرافت اور احترام صاف جھلک رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ فراز کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ صرف 4 سال کے تھے تو ان کے والدین اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چھوٹے بچے کے ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے دھندلے ہو گئے تھے۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کے والد کی موت کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ اسے اپنا آبادی والا شہر چھوڑنا پڑا۔ کسی نامعلوم شخص نے اسے ایک بڑے جہاز پر بٹھایا اور لہروں کی مدد سے وہ اسی چھوٹی عمر میں بغداد پہنچ گیا۔ آج وہ 25 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ دن بھر وہ گزرتے ہوئے جہازوں سے بھاری بکسے اور بوریاں اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتا۔ جب وہ تھک جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بندرگاہ پر آنے اور جانے والے لوگ اس مسافر اور اس کی محنت اور دیانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے خوشی خوشی اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ رات کو فراز اپنی پھٹی ہوئی چٹائی بچھا کر بندرگاہ کے ایک ویران کونے میں لیٹ جاتا۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر وہ اکثر سوچتا تھا کہ اے رب، تو نے مجھے یتیم کر دیا لیکن کسی کا محتاج نہیں کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حلال محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک تڑپ رہتی تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرے، لیکن وہ توکل کے پیکر تھے۔ میں صبر کر کے سو جاؤں گا۔ بغداد کے اسی شہر کے امیر ترین اور پوش علاقے میں جہاں بلند و بالا اور عظیم الشان محلات بنائے گئے تھے، شہر کا سب سے بڑا تاجر فاروق وہاں رہتا تھا۔ فاروق کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس کے اپنے جہاز تھے جو سمندر اور پہاڑوں سے سامان لاتے تھے، اور اس نے دوسرے چھوٹے تاجروں سے ان کا سامان لانے کے لیے بھاری کرایہ بھی وصول کیا۔ لیکن اس بے پناہ دولت نے مفرور کو انتہائی مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں دین سے پختہ وابستگی، آخرت کا خوف یا غریبوں کے لیے ہمدردی جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دن رات صرف اپنی دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہا۔ جب وہ اپنے ریشمی کپڑوں میں ملبوس بندرگاہ سے گزرتا تو غریب مزدور اس کے آگے سر جھکاتے۔ وہ ان کارکنوں کو اپنے پیروں تلے کی خاک سمجھتا تھا۔ اس نے ان سے جانوروں کی طرح کام کرایا اور انہیں اجرت دینے میں ہمیشہ بخل اور سختی سے کام لیا۔ فراز اکثر دھوپ میں فاروق کے جہازوں سے سامان اتارتے ہوئے کھڑا ہوتا اور فاروق منہ موڑ کر اس کے پاس سے گزر جاتا۔ اللہ نے فاروقہ کو بیٹا نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلی۔ دونوں ماں بیٹی کا دن قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں گزرا۔
लेकिन फरख को अपनी ही बेटी से शदीद नफरत थी। जहालत के घमंड में डूबा हुआ ताजिर अक्सर अपनी बीवी और बेटी को ताने देता था, तुमने अपनी तरह एक लड़की को जन्म दिया, अगर उसकी जगह कोई लड़का पैदा होता तो आज वो मेरे माल का वारिस होता, वो बंदरगाह पर मेरी मदद करता और मेरा कारोबार संभालता। आयशा ये ताने सुनकर खामोशी से अपने आंसू निगल लेती, लेकिन हमेशा अपने वालिद की इज्जत करती। वो जब भी फारूक से बात करती वो हमेशा दीन की आखिरत और अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करने के बारे में नरमी से बोलती थी, इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन इस कहानी की कोई आयत इसके सख्त दिल बाप पर असर डाले। आयशा की वालिदा भी हमेशा अपनी चटाई फैलाकर रोती रहती और अपने शौहर के लिए हदायत की दुआ करती। वक्त गुजरता रहा। फराज बंदरगाह पर मेहनत की कमाई से जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। आयशा अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर अपनी ख़ानदानी लौंडियों के साथ बंदरगाह पर आईं ताकि वहाँ मौजूद गरीबों और नादार मज़दूरों में अल्लाह का नाम लेकर सदका तकसीम कर सके। आयशा ने चादर ओढ़ रखी थी और पूरी तरह से पर्दा किया हुआ था। वो एक एक करके ज़रूरतमंदों को खाना और कुछ चांदी के सिक्के दे रही थी। चलते चलते इसकी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां दिन भर के काम के बाद थका हुआ फराज ज़मीन पर बैठा माथे से पसीना पोंछ रहा था और कुछ सोच रहा था। आयशा करीब आई और नहायत अदब और एहतराम से फराज की तरफ कुछ ताज़ा फल और चंद चांदी के सिक्के बढ़ाए। फराज एकदम से उठा। उसने देखा कि एक पाक दामन औरत अल्लाह की राह में इसकी मदद कर रही है। फराज की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उसने इंतहाई आजिज़ी के साथ आगे झुककर आयशा का शुक्रिया अदा किया और खालिस नियत के साथ उसे बरकत दी। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इस सदका को आपके लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। आयशा फराज की नरम गुफ्तगू और उसके चेहरे की शाइस्तगी से बहुत मुतासिर हुई और हल्की सी संजीदा मुस्कुराहट के साथ उसे गौर से सुनने लगी ताकि वो इसकी दुआ पर आमीन कह सके। ये बहुत पाकीज़ा और रूहानी मंजर था। लेकिन फिर कुछ फासले पर खड़े 3 चालाक ताजरों ने ये मंजर देखा। ये ताजर वही लोग थे जो फारूक ताजीर की दौलत और गुरूर में अचानक इजाफे की वजह से उससे बेहद हसद करते थे और उसे बदनाम करने का बहाना ढूंढते थे। जब इसने आयशा को पहचाना तो मालूम हुआ कि वो शहर के सबसे बड़े ताजर फारूका की बेटी है और वो एक यतीम खाकालूद मजदूर की बातें सुनकर नरमी से मुस्करा रही थी। चुनांचा इसके दिमाग में एक चाल आई। एक ताजर ने कहकहा लगाया और कहा, अरे देखो, ये अज़मी फारूका की चहेती आयशा नहीं है, ये यहाँ इस भिखारी चीथड़े मजदूर के साथ क्या कर रही है। दूसरे ने आग में ईंधन डालते हुए कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि वो दोनों आपस में कैसी बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई खुफिया और नाजायज ताल्लुक ज़रूर है। फ़र्क शहर भर में अपनी शोहरत पर फ़ख्र करता है। आज वक्त आ गया है कि इसकी इज्जत बर्बाद हो जाए। इन तीनों ताजरों ने इतने मसाले के साथ ये झूठा बयान एक दूसरे को सुनाया और फिर तेज़ी से ये खबर बंदरगाह और बाजार के आम लोगों में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या आपने सुना कि बेटी आयशा का बंदरगाह पर एक यतीम मजदूर के साथ मुआशका करते हुए पकड़ा गया है। फराज फिर से अपनी मेहनत में मसरूफ़ हो गया, इस बार तूफ़ान से बिल्कुल बेखबर। आयशा ने सदका भी तकसीम किया और जहनी सुकून के साथ अपने महल में वापस आ गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी छोटी सी मेहरबानी ने इसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्तिहान खोल दिया है। अगले दिन बाजार अपने उरूज पर था। फारूक ताजीर अपने अजीमुशान दफ्तर में रेशमी किशन पर बैठा अपनी दौलत का हिसाब लगा रहा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर तकब्बुर और गुरूर साफ नजर आ रहा था। तभी वो 3 मक्कार ताजिर वहां आ गए जिसने कल पाराशा और पाराज की बंदरगाह देखी थी। उनके चेहरों पर झूठी हमदर्दी थी, लेकिन उनके दिल हसद के जहर से भरे हुए थे।
एक ताजिर आगे आया और बड़ी चालाकी से कहा, फारूक साहब, आप शहर के सबसे अहम ताजिर हैं। आपका खानदान बहुत बड़ा और शरीफ है, लेकिन बदकिस्मती से हमने आपकी बेटी से ये तवक्को नहीं की थी। हिसाब का कलम फारूक के हाथ से फिसल गया। उसका गुरूर मजरूह हुआ। उसने गुस्से और हैरत से पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है? मेरी बेटी ने क्या किया है? उन ताजरों ने मामले में मसाला डालकर आग पर ईंधन डाला। फारूक साहब, ये तो कल ही हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी बंदरगाह के एक वीरान कोने में चली गई। वहां वो उस गरीब भिखारी मजदूर लड़के को खाने की चीजें और सके दे रही थी। बात यहीं खत्म हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन वो यतीम लड़का तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़े हुए था। वो बातें कर रहा था और हंस रहा था, और तुम्हारी बेटी भी उसकी बातों पर शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों के दरमियान कोई न कोई पोशीदा रिश्ता जरूर है। फारूक के दिमाग में आग लग गई। उसके वजूद में शौले भड़क उठे। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है। आप लोग मेरी कामयाबी पर रिश्क करते हैं। मेरी बेटी मुत्तकी और पर्दा नशीन है। दूसरे सौदागर ने फौरन अपनी गवाही पेश की और कहा कि फरह साहब, अगर आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करते तो इन 2 और सौदागरों से पूछ लें जो वहां मौजूद थे। हम 3 गवाह हैं कि तुम्हारी इज्जत बंदरगाह की खाक में रौंदी गई है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। फरह अपनी झूठी इज्जत और गुरूर पर इतना बड़ा हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने किसी भी चीज की छानबीन करना जरूरी नहीं समझा। वो बगैर कुछ कहे वहां से उठा और गुस्से से पागल होकर अपने महल की तरफ भागा। उसके कदमों की आवाज में कहराम था। महल में दाखिल होते ही उसने पूरी कुव्वत से चीख मारी, आयशा, तुम कहाँ हो? महल का अमला उसकी गरज से खौफजदा हो गया। आयशा, जो अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो डरते डरते दौड़ती हुई आई। हाँ बाबा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। फरह की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने करीब आकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम कल बोट गए थे? आयशा ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ अब्बा जान, मैं अपने दोस्तों के साथ गरीबों को सदका देने गया था। ये सुनकर फरूका का गुस्सा मजीद बढ़ गया, क्योंकि ताजरों ने जो कुछ कहा था उसका एक हिस्सा सच साबित हुआ था। पीसते हुए, क्या आपकी वहां किसी मजदूर लड़के से मुलाकात हुई? क्या तुम उससे बात कर रहे थे? आयशा ने आहिस्तगी से कहा, हाँ अब्बू, एक थका हुआ मजदूर था, मैंने उसे बेल आउट दिया। आयशा ने अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं किया था कि फारूक ने आगे बढ़कर उसके मासूम चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आयशा जमीन पर गिर गई। बेशरम लड़की, फारूक गरज कर बोला, तुमने मेरी सारी जिंदगी की इज्जत बर्बाद कर दी है। इस भिखारी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके साथ छेड़छाड़ करने गए थे? आयशा ने अपने वालिद के पांव पकड़कर रोना शुरू कर दिया। नहीं अब्बा जान, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने सिर्फ अल्लाह के नाम पर इनकी मदद की। वो मुझे दुआएं दे रहा था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फरूख अंधा हो चुका था। उसने आयशा को बाजू से पकड़ा, घसीटकर अपने कमरे में धकेल दिया। दरवाजे पर बाहर से बड़ा ताला लगा हुआ था। आयशा की मां भागती हुई आई। बेटी की ये हालत देखकर वो रोने लगी। मेरी मासूम बेटी को कमरे में क्यों बंद किया? इसका कसूर क्या है? फारूक भी अपनी बीवी पर गुस्से में आ गया और चिल्लाया, ये लड़की तुम्हारी वजह से खराब हो गई है। वो मजहब की पैरवी करने और नमाज पढ़ने का ड्रामा करती है और मजदूरों के साथ छेड़छाड़ करते हुए शहर में घूम रही है। आज के बाद ये दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। फारूक पांव मारता हुआ वहां से चला गया। आयशा अंधेरे कमरे में फर्श पर गिर गई। वो बलक बलक कर रो रही थी। इसका दिल बिखर गया। इसने नमाज की चटाई बिछाई, सजदे में गिरकर अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, तू दिलों का हाल बेहतर जानता है। तुम मेरी बेगुनाही के गवाह हो, मुझ पर रहम फरमा। अगले दिन सूरज के तुलू होते ही इन तीनों फासिक मुफस्सिरीन ने ये झूठी अफवाह बगदाद के कोने कोने में फैला दी।
बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर, दुकानदार और आम राहगीर सब के लबों पर एक ही कहानी थी, फारूक ताजिर की बेटी और एक मजदूर की कहानी। अब जब भी फारूक बाजार या बंदरगाह से गुजरता तो लोग उनके सामने खामोश रहते, लेकिन उस पर हंसते और पीठ पीछे ताने देते। देखो अजीम ताजिर की इज्जत इसकी बेटी ने पोर्ट पर ही नीलाम कर दी। फारूक जो कल तक सीने से फूले हुए और आंखें उठाए चलते थे, आज मैं शर्मिंदगी और शर्मिंदगी की वजह से आंखें नीची किए चलने पर मजबूर था। इसका उनके कारोबार पर भी गहरा असर पड़ने लगा। दूसरे ताजिरों ने फारूक की बदनामी की वजह से इसके जहाज़ों में सामान भेजना कम कर दिया था। बहरी जहाज़ खाली रहने लगे और तिजारत में नुकसान होने लगा। फरूखा ने नुकसान को निगल लिया और सोचा कि यह सारी बदकिस्मती इसकी बेटी की वजह से है। यहाँ आयशा दिन रात अपने कमरे में कैदी की तरह रहती थी। इसका रोना कभी नहीं रुका, नमाजों में तसल्ली मांगती थी, लेकिन इस सारे हंगामे से बिल्कुल गाफिल फराज अपनी धन में मेहनत कर रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वजह से बगदाद के सबसे बड़े महल पर क्या आफत आई है। फराज छोटे सिक्के जमा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। आखिरकार उसकी ईमानदारी रंग लाई और उसने शहर के एक गरीब इलाके में एक छोटा सा कच्चा कमरा किराए पर ले लिया। जिंदगी में पहली बार उसके सर पर छत थी जिसे वो अपना कह सकता था। इसे अब बंदरगाह की ठंडी जमीन पर सोने की जरूरत नहीं थी। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ता, सारा दिन बंदरगाह पर भारी वजन उठाता और शाम को थक हार कर खाना लेकर अपनी छोटी झोंपड़ी में वापस आ जाता। खाना खाकर सुकून से सो जाता। वो पाकीज़ा दिल था और जिंदगी में अपनी तरक्की से बहुत खुश था। इसने पानी के लिए मिट्टी का एक पुराना बर्तन और सोने के लिए चटाई खरीदी। इसकी दुनिया सिर्फ इस तक महदूद थी, लेकिन किस्मत दुनिया के दो मुख्तलिफ किनारों पर रहने वाले ये दो लोग आपस में टकराने वाले थे। फारूक का गुस्सा अब सब्र की हद को पहुंच चुका था। लोगों के ताने इसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। इसने ऐसा खौफनाक फैसला लेने का फैसला किया कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फारूक ताजिर की शोहरत अब बगदाद के बाजारों में महंगे दामों दिख रही थी। लोग उसे आगे पीछे ताने देते। अजीम ताजिर की प्यारी बेटी को एक भिखारी मजदूर से प्यार हो गया। इन चीज़ों ने फर्क की अना को बुरी तरह कुचल दिया था। इसने एक रात गुस्से के आलम में फैसला किया, लोगों की इन जहरीली ज़बानों पर काबू पाने का एक ही तरीका है। अगर लोग समझते हैं कि आयशा और इस मजदूर का कोई रिश्ता है, तो मैं इस बदकिस्मत लड़की की इस भिखारी से शादी करके हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दूंगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। फारूक ने यह फैसला अपनी बीवी को बताया। यह सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसी नाइंसाफ़ी ना करो। आप अपनी फूल जैसी बेटी को एक नाखवानदा और गरीब मजदूर के हवाले कैसे कर सकते हैं? लेकिन फ़र्क अंधा हो चुका था। इसने गरज कर कहा, मेरा फैसला हतमी है। जाकर इस बेशरम लड़की से कहो कि वो कल इस मजदूर से शादी कर लेगी। आयशा, जो पिछले कुछ दिनों से रोते रोते नीम मर चुकी थी, अपनी माँ को गले लगाकर रो पड़ी। माँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। मैं इस मजदूर को नहीं जानता। मैंने इसे सिर्फ खुल्दा के लिए खैरात दी थी। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा। इसकी माँ बेबसी से आंसू बहा रही थी। बेटी, तेरे बाप को शैतान ने कब्जे में ले लिया है। अब सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। अगली सुबह फ़र्क के कुछ तैयार और मुसल्लह आदमी बंदरगाह पर पहुंचे। फ़र्क अपनी आदत के मुताबिक बोरियों का एक भारी ढेर उठाने ही वाला था कि गुंडों ने आकर उसे दबोच लिया। फ़र्क घबरा गया। तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है? जवाब दिए बगैर वो उसे घसीटते हुए फ़र्क ताजिर की अजीमुशान हवेली में ले गए। फ़र्क ने देखा कि इसके सामने जो आदमी है वो ढीठ है। एक काजी बड़े सहन में बैठा था। फारूक ताजिर इसके पास गुस्से में थे। फारूक ने एक चमकती हुई तलवार पकड़ी थी। आयशा की वालिदा सादा लिबास पहने रोती हुई खड़ी थी।
फराज ने हाथ जोड़कर कहा, ताजिर साहब, जनाब, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आप लोगों को बड़ी गलत फहमी है, मैं तो महज एक मजदूर हूं। फारूक ने आगे बढ़कर अपनी तलवार की नोक फराज की गर्दन पर रख दी। इसकी आंखें खून आलूद थी। चुप रहो भिखारी, तुम यही चाहते थे। तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है और अब तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। अगर तुमने ये शादी खामोशी से कबूल ना की तो मैं यहीं तुम्हारा गला काट दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर्दा। फराज तलवार की सर्द महरी और फारूक के गुस्से से घबरा गया। इसने सर झुका लिया, जान बचाने पर मजबूर हो गया। काजी ने आयशा से पूछा। आयशा ने मायूसी से माँ की तरफ देखा। इसकी माँ रोते हुए इसके सर पर हाथ रखकर नरमी से बोली, बेटी, तुम बेकसूर हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी आजमाइशों से ज़रूर निजात दिलाएगा। आयशा ने बेबसी से रोते हुए कहा, मुझे कबूल है। मौत के डर से फारूक ने भी शादी कबूल कर ली। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, फारूक ने जहरीली नज़रों से आयशा की तरफ देखा और चलाया, आज से तुम मेरी बेटी नहीं रही, फिर कभी मेरे इस महल में अपने बदकिस्मत कदम मत रखना। इस भिखारी के साथ यहाँ से निकल जाओ। रात हो गई। आयशा ने आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाया। माँ बेटी दोनों के आंसू ना रुक रहे थे। फिर अपने अजीमुशान महल को पीछे छोड़कर आयशा गरीब मजदूर के पीछे एक नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र पर रवाना हुई। वो रात की सुनसान गलियों में खामोशी से चलते रहे। फारूक का दिमाग तूफान की तरह घूम गया। इसने हैरत से कहा, ए अल्लाह, ये कैसा फैसला है। ये रेशमी कपड़ों वाले ताजिर की बेटी जो ऐशो इशरत में परवरिश पाती है, मेरी मिट्टी की झोंपड़ी में कैसे रहेगी। वो दोनों फराज के गरीब तारीक कमरे की तरफ चल पड़े, जहां एक टूटी हुई चारपाई और चटाई के सिवा कुछ नहीं था। अंदर दाखिल होते ही आयशा का दिल गम से भर गया और वो दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सारी दुनिया बिखर चुकी थी। फराज शर्म और निदामत से भर गया। नजरें नीची करते हुए इसने निहायत अदब से कहा, बेबी, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी बदकिस्मती की वजह से है। अगर मैं इस दिन तुमसे खैरात ना लेता तो तुम्हें ये हशर ना होता। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से और अफसोस से जवाब दिया, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम शादी से इनकार कर सकती थी, तुमने बात क्यों नहीं की। फराज की आवाज़ में यतीम की बेबसी थी। बेबी, अगर मैं इनकार कर देता तो तेरा बाप इस तलवार से मेरा सर कलम कर देता। मैं मौत से डर गया था। आयशा खामोश हो गई और थक हार कर टूटी हुई चारपाई पर गिर गई। फराज फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया, लेकिन इस रात दोनों में से कोई नहीं सोया। अगली सुबह इन दोनों के लिए एक नई और तल्ख हकीकत का आगाज थी। फराज उठा, फजर की नमाज अदा की और फिर काम करने के लिए पोर्ट की तरफ रवाना हुआ। आयशा जब बेदार हुई तो इसने खुद को इस छोटी सी भरी झोंपड़ी में अकेला पाया। इसने खुद कभी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ा था। अब उसे आग जलाकर खाना पकाना था। वो सारा दिन अपनी खुशगवार जिंदगी को याद करके रोती रहती। बंदरगाह पर फराज की हालत और भी खराब थी। जब वो पहुंचा तो दूसरे कारकुन उस पर हंस पड़े। अरे, इस यतीम भकारी का अंजाम देखो। शहर के सबसे मुअज़्ज़िज़ ताजिर की लाडली बेटी इसकी झोंपड़ी में बैठी है। सुना है वो बहुत खूबसूरत है। इन तानों ने फराज के दिल को तीरों की तरह छेद कर दिया। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसने फैसला किया कि अब वो परहजूम इलाके में काम नहीं करेगा। वो बंदरगाह के एक वीरान कोने में चला गया, जहां जहाज कम आते थे और उजरत भी कम थी, ताकि कोई उसे ताने ना दे। आयशा जब शाम पहुंची तो इंशाह के नाम पर पसीने से भीग कर वापस आता तो रोटी लेकर आता। बच्चे, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, इसमें से कुछ खा लो, वो शाइस्तगी से पेश करता। आयशा गुस्से से उसे ताने देती और शुरू में खाने से इनकार करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि ये झोंपड़ी इसका मुकद्दर है। उसने सब्र किया और सारा दिन कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो कम ही बोलते थे,
फराज ने हमेशा माँ की तरह इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। वो कभी भी इसकी इजाज़त के बगैर इसके करीब नहीं गया और इसकी इजाज़त के बगैर मुझसे मुलाकात करने लगा। एक दिन पोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ उठाते हुए फराज की कमर पर गिरा और वो दर्द से चीख कर उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया, जिसने उसका मुआयना करते हुए कहा कि इसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होंगी। आयशा ने जब फराज को दर्द में तड़पते देखा तो वो जिसको ताने देती थी वो अब बेबस होकर इसकी देखभाल के लिए रातों को जागती रही। फराज की बेबसी और इनकी खिदमत के दरमियान दुख, वो एक दूसरे को समझने लगे और फराज वाकई एक कीमती हीरा था जिस पर वो अपने बिस्तर में वक्त गुजारता था, जबकि आयशा इनके दिलों को एक दूसरे के करीब लाती थी। वही एक दूसरे के लिए दुख भी था, लेकिन उसने सब्र करना सीख लिया था। वो दिन रात सोचती थी कि इसकी खूबसूरत बेटी कैसी होगी, लेकिन वो फारूक की झोंपड़ी में वापस ना जा सकी और उसकी परेशानी एक बार फिर ख़त्म हो गई। जलाल को अपनी कामयाबी पर बहुत फ़ख्र था कि उसका चेहरा सफ़र की थकावट से रंगा हुआ था। वो काफ़ी देर से बगदाद की गलियों में घूम रहा था। शहर तकरीबन 25 साल का, बचपन में किसी दूसरे शहर से यहाँ कौन आया था। लोगों ने उसे पागल समझा और आगे बढ़े, लेकिन बूढ़ा हिचकिचाता रहा। आखिर तलाश करता हुआ बंदरगाह पर पहुंचा। वहां जाकर उसने बड़े और तजर्बाकार मजदूरों से पूछा। सोचकर एक मजदूर ने कहा, बाबा, हमने यहाँ बरसों से ऐसा सिर्फ एक लड़का देखा है, वो भी बचपन में कहीं और से उस शहर में आया था। वो एक यतीम है और वो बहुत मुहज्जब है, लेकिन गरीब की किस्मत अजीब है। उसका नाम फराज है और वो घर के पिछवाड़े में मजदूरी करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो चोट की वजह से पहाड़ी के दूसरी तरफ अपनी झोंपड़ी में पड़ा है। बूढ़े का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। क्या ये वो लड़का है जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं? उसने मजदूर से झोंपड़ी का रास्ता पूछा और तेजी से उसकी तरफ चल पड़ा। शाम को खाना पकाते हुए थोड़ा सा सूखा खाना पकाने का एहसास हो रहा था। फराज को खाना पकाने का एहसास हुआ। आयशा दरवाजे पर दस्तक हुई तो फराज ने आहिस्तगी से उसे खोला। बाबा, आप कौन हैं? तुम क्या चाहते हो? फराज ने शाइस्तगी से पूछा। बूढ़े ने फराज के करीब आकर उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल उसके मरहूम दोस्त की तरह थीं। बूढ़े ने भारी आवाज में अपना नाम लेते हुए पूछा, बेटा, तुम इस शहर में कब से हो? आपके वालिदैन कौन थे? फराज ने बस अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो 4 साल की उम्र में यहाँ आया और कुछ याद नहीं। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ा और फराज को गले लगा लिया। बेटा फराज, मैं तुम्हारी वालिद का बहुत पुराना और ख़ास दोस्त हूँ। आखिरी बार जब मैंने आपको देखा था, आप बहुत छोटे थे। तुम महज मजदूर या भिखारी नहीं हो। आपके वालिद एक दूसरे शहर के बहुत बड़े और अमीर ताजिर थे। एक हादसे में इनकी वफ़ात के बाद दुश्मनों की वजह से आपको इस शहर में भेज दिया गया, लेकिन तुम्हारे पीछे इतनी दौलत और तुम्हारे बाप का कारोबार है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने की उम्मीद में। आयशा, जो कि ये सब सुनकर पीछे खड़ी थी, तड़प उठी। फराज और आयशा दोनों को अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़का जो सारी जिंदगी बगदाद वालों और फारूक ताजिर की नज़रों में सिर्फ एक फटा हुआ भिखारी रहा, दरअसल एक अजीम ममलिकत का वारिस था। तिजारत बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं यहाँ सराय में रह रहा हूँ, तुम इस पर गौर करो। कल हमने वापस जाकर अपने वालिद का कारोबार संभालना है। और ये कहकर वो चला गया। इस रात इस छोटी सी झोंपड़ी में कोई भी नहीं सो सका। ये वाकई एक ख्वाब जैसा था। आयशा ने फराज की तरफ देखते हुए कहा, फराज, ये तुम्हारे सब्र का बदला है। तुम कल खुद इस बूढ़े के साथ अपने शहर चलो और अपने बाप की अमानत का ख्याल रखना। फराज ने आयशा की तरफ देखते हुए बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, बीबी जी, मैं कभी अकेला नहीं जाऊंगा। आपने इस कोशिश में मेरा साथ दिया, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। आयशा को अपने वालिद का वो जुल्म याद आया
जब उसने इसे तलवार की नोक पर घर से निकाल दिया था। भारी दिल के साथ उसने फैसला किया कि अपने शौहर के साथ इसके आबादी वाले शहर में जाना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो अपने बाप के शहर में रहे जो इसकी शक्ल से नफरत करता था। अगली सुबह फराज और आयशा ने बूढ़े से शानदार गुफ्तगू की और जहाज में सवार हो गए। सफ़र लंबा था। दरिया की लहरों को देखकर फराज का दिल तशक्कुर से भर गया। ए रब, जब मैं यहाँ इस शहर में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज जब मैं जा रहा हूँ तो आपने मुझे एक शानदार जीवन साथी, इज्जत और दौलत से नवाजा है। रास्ते में उसने बूढ़े से उसके वालिदैन के बारे में पूछा और उनकी कहानी जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चंद दिनों के सफ़र के बाद जहाज शहर के साहिल पर आ गया। ये फराज का अपना शहर था। बूढ़ा उन्हें लेकर एक बड़े महल नमा मकान के सामने रुक गया। फराज को मुबहम तौर पर याद आया कि ये घर इनके बचपन में टूट फूट का शिकार था, लेकिन बूढ़े ने उसे मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया था। आयशा ने इस घर के अंदर कदम रखा तो वो हका बका रह गई। ये घर उसके मुतकब्बिर बाप फर्ख ताजिर के महल से दोगुना बड़ा और आलिशान था। रेशमी पर्दे, कीमती फर्श और एक शानदार बाग लाया आयशा की आंखों में तशक्कुर के आंसू। बेशक अल्लाह जो कुछ करता है अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। अगले दिन बूढ़ा आदमी फराज को शहर के खास बाजारों में ले गया और उसका तारुफ उसके वालिद के पुराने दोस्तों से कराया। फराज को देखकर लोग खुशी से रोने लगे। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वो बिल्कुल आप जैसा नजर आता था जब वो जवान था। उन्होंने कहा कि फराज ने अपनी दानिशमंदी, ईमानदारी और बंदरगाह के तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए अपने वालिद का बंद कारोबार दोबारा शुरू किया। अपनी मेहनत और अज़्म की वजह से उनका कारोबार थोड़े ही अरसे में पूरे मुल्क में फैल गया। वो अब अपने बाप से बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। फराज और आयशा अपने नए महल में बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इतनी खुशी के बावजूद आयशा की आंखें अक्सर नम रहती थीं। वो अकेली रोती और अपनी माँ को याद करती, जिसे उसने रात की तारीकी में आखिरी बार देखा था। एक दिन फराज ने आहिस्तगी से आयशा से कहा, आयशा, अगर आप इजाज़त दें तो हम बगदाद चलें ताकि आप अपने वालिदैन से मिल सकें। आयशा ने चौंक कर इनकार करते हुए कहा, नहीं फराज, मेरे वालिद मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे इस घर से निकाल दिया, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। लेकिन फराज का इसरार था कि अल्लाह ने हमें आजमाइशों से निजात दी है और खुशहाली दी है, आपको वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आयशा मान गई। इस बार जब वो बगदाद आया तो यतीम मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि शहर के सबसे अहम और शाही वजीर के तौर पर आया। उनके काफले को देखकर बगदाद की सड़कें थम गईं। मुहाफिज बहुत से महंगे घोड़ों पर सवार हुए और उनके पीछे फराज और शाही गाड़ी में आए। फर्ख ताजिर को उसके जासूसों और ताजरों ने पहले ही इत्तला दे दी थी कि पड़ोसी शहर का सबसे बड़ा और अमीर तरीन ताजिर फर्ख से कई गुना ज़्यादा दौलतमंद है, बगदाद आ रहा है। फारूक, जिसके दिल में हमेशा दौलत की हौस रहती थी, वो उस नए और अजीम ताजर को सलाम करने और उससे तजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए दौड़ता हुआ आगे आया। लेकिन जब बगी का दरवाज़ा खुला और फराज उसमें से बाहर निकला तो फर्ख ताजिर के पांव बेहिस हो गए। ये वही भिखारी और खाक छानने वाला मजदूर था जिसे उसने तलवार की नोक पर जलील करके बेटी समेत भगा दिया था। लेकिन फरूकियत जैसा मगरूर शख्स लालच में अंधा हो चुका था। वो जलील होने के बजाय बेशर्मी की इंतहा को पहुंच गया। लालच में आकर फारूक आगे बढ़ा और फराज को मजबूती से गले लगा लिया। मेरे दामाद, आ जाओ, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आयशा बेटी, अंदर आ जाओ। उसने झूठी मुस्कुराहट और चालाकी से उनका इस्तकबाल किया। आयशा अपने बाप की ये चालाकी देखकर हैरान रह गई। वो बाप जो उसे बेगुनाह होने के बावजूद कत्ल करना चाहता था, आज दौलत की चमक देखकर वो उसे पलकों पर रख रहा था।
आयशा भागती हुई महल के अंदर गई और अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आयशा जब संभल गई तो उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा जान, अब्बू को अचानक क्या हुआ? इसे हम दोनों की शक्ल से भी नफरत थी। आज ये शाही इस्तकबाल कैसा है? माँ ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तेरे बाप को रिश्तों की इज्जत नहीं, प्यार की। जब से उसे खबर मिली कि फराज एक बहुत अमीर ताजिर का बेटा है और आज वो पूरे बगदाद का अमीर तरीन आदमी बन चुका है, ये सब इनका लालच है। दौलत देखकर उसकी आंखें झुकी हुई हैं। इसी लम्हे ये खबर जंगल की आग की तरह बगदाद के बाजारों और बंदरगाहों में फैल गई कि वो यतीम जो कल तक इन्हीं धूप वाली सड़कों पर अपनी पीठ पर बोरियां उठाए फिरता था, आज पूरे इलाके का सबसे मुमताज सौदागर बनकर लौट आया है। इन बदनीयत ताजिरों के मन बंद हो गए और मगरूर फारूका का गरूर अपने ही दामाद की दौलत के सामने खाक हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और रुतबा दर हकीकत अल्लाह का तहफा है। वो जिसको चाहे दे सकता है और जिससे चाहे छीन सकता है। इंसान को अपनी दौलत पर कभी फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्क ताजीर जैसा लालच इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा करता है। दूसरी तरफ फराज और आयशा जैसे जिनके दिलों में अल्लाह पर यकीन और सब्र होता है, इनकी दुनिया में किस्मत बदल जाती है और आखिरत में भी इनका रुतबा बुलंद हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।